دیکھیے ذہن میں کوئی سوال تو کرنے پڑے. کے بارے میں ایسے لوگ بچپن ہے اگر وہ کسی اتنا پیسہ پہلے قرضدار ہے 8 لاکھ روپئے کا اسے دینا ہے تو اس کو پورا کرے پہلے یا پہلے حل کرے پیسہ. ان کا سوال یہ ہے کسی پہ قرض ہو اور اس کے پاس پیسے رکھے ہو تو وہ پہلے حج کرے یا پیسے اتارے. بھائی پہلے پیسے اتارے وہ تو آپ کے پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ نے وہ قرض اتار دیا تو آپ نے تو حج فرض رہے گا ہی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی طرح کا جو معاملہ آیا کہ میں زکات کیسی ہے میرے پاس فرض ہے. انہوں نے یہی بات سمجھی کہ پہلے قرض اتار ادھر زکات ہے. اگر آپ قرض نہیں اتار رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں. دار کی جنازے کی نماز وہ بڑا گناہ ہے اگر آپ قرض سر پہ ہوتے ہوئے حج کرنے جا رہے ہیں. کسی کے پاس امانت رکھوائی اس سے وہ گم ہو گئی کیا اس سے واپس دینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کے پاس امانت رکھوائی اس سے وہ ضائع ہو گئی یا گم ہو گئی تو کیا اس سے اس کا ڈانٹ لے مطلب اگر وہ دینا چاہے واپس تو وہ لے سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں لے سکتے بھائی. ایک تو آپ کی امانت کی جو ہے وہ سیفٹی کر رہا تھا. کوئی آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا تھا. اگر اس سے وہ امانت کھوئی گئی یا ضائع ہو گئی یا گر گئی یا کوئی چھین کے لے گیا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کا ڈانٹ دو. یہ جائز نہیں ہے ورنہ آخر میں آپ کی پکڑ ہوگی اس کے بدلے میں. جب سب کچھ فکس ہے تو کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا بھائی. عزت کے سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ فکس ہے تو کیا دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ بالکل دعا مانگنے کا تو اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور واقعی سب کچھ اللہ نے پہلے لکھ دیا اور یہ بتا دیا سب کچھ کہ بھائی سب کچھ فکس ہے. مگر پھر بھی قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا رہا ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ ہی نہیں جو آپ کے لکھے ہوئے کو بدل نہ سکے. وہ تو قادر مطلق ہے حالانکہ اس کی سنت نہیں ہے بدلنا لیکن وہ چاہے تو بدل سکے گا. تو دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. اللہ زندہ جاوید ہے اور ہمیشہ سب کچھ بدل سکتا ہے جو چاہے جب مرضی پلٹ سکتا ہے. اپنا لکھا ہوا لکھا بھی تو اس نے ہی پلٹنے کی وہ اختیار ہوتی ہے. اور دعا کا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں جو چیزیں فکس ہیں جو قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں روزی زیادہ دوں کم دوں میرے ہاتھ میں. زندگی موت میرے ہاتھ میں. عزت میرے ہاتھ میں. تو آپ اللہ سے مال نہ مانگیں زندگی نہ مانگیں بلکہ اس سے برکت مانگیں ہدایت مانگیں مغفرت مانگیں. جو چیزیں اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے مانگنے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر برکت دی گئی تو آپ کے مال میں آپ کی عمر میں آپ کی صحت میں آپ کی اولاد میں برکت جو آتی ہے وہ ان سین چیز ہے کہ جو بنا دیکھے چیزوں کو اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ کافرین اور مشرکین. ان کا سوال یہ ہے کافرین اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ بھائی کافر لوگ جو ہے کافر کا ایک لفظی میننگ کو انکار کرنے والا کہ جو بالکل اللہ کو نہ مانے وہ لوگ کافر ہیں. اور مشرک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جو صفات ہے ان میں شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرا وہ مشرک ہیں. جو اللہ کو نہ مانے انکار کرے اس کا یا ناشکری کرے وہ لوگ کافر ہیں. اگر سفر میں کوئی نماز پوری پڑھ دے تو کیا دورانی پڑے گی؟ ان کا سوال یہ ہے سفر میں اگر کوئی نماز پوری پڑھ دے تو کیا دورانی پڑے گی؟ بالکل دورانی چاہیے. میرے نزدیک تو سفر میں پوری نماز پڑھنا گناہ ہے. اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اجازت ہے لیکن اگر آپ اپنی نماز الگ میں پڑھ رہے ہیں یا آپ پورے ساتھی مل کے جماعت کر رہے ہیں سارے مسافر ہیں تو آپ کو قصر ہی کرنی چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات ہے اس کے پیچھے کہ جو رخصتیں ہیں اللہ کی نعمت ہے ان سے فائدہ ہوگا. اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آپ کیوں اٹھا رہے؟ اگر ہمارا کوئی نان مسلم فرینڈ ڈیڈ ہو جائے مر جاتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی نان مسلم اگر ڈیتھ ہو جائے اس کی تو کیا اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو اللہ کے رسول کو قرآن میں اللہ نے منع کر دیا کہ تم سب لوگوں میں کھڑے نہ ہونا. ان کے لیے تم کتنی استغفار کرو گے انہیں معاف نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم 70 بار کی استغفار کرو تو میں تب بھی انہیں معاف کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ اللہ 70 سے زیادہ استغفار کرنے پہ انہیں معاف کر دیں تو میں ان کے لیے 70 سے زیادہ. تو آپ
इतना ही मान लो जो लोग कुफर की हालत में मरेंगे वो अल्लाह के बागी हैं, ना वो तो कुछ नहीं होता। मुसलमानों में भी अगर कोई कुफर की हालत में मरा, मैंने आपको बता दिया, इनकारी और नाशुक्रा, अगर हम नाशुक्री करते हैं तो हम अल्लाह की नज़र में काफिर हैं, चाहे नाम हमारा सुलेमान हो, चाहे नाम हमारा सलीम हो। तो जो कुफर की हालत में मरेंगे उन्हें अल्लाह माफ़ करे। हमारी तरफ अगर किसी का कर्ज है किसी भाई का, वो माफ़ कर दे और हमें बताना हो, कर्ज माफ़ हो जाएगा। इनका सवाल ये है, किसी का कर्ज है हमारी तरफ, हमें पता भी नहीं है, हमने माफ़ कर दिया, तो क्या वो कर्ज माफ़ हो जाएगा? बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। वो उसकी अथॉरिटी में है ना, वो चाहे वसूल करे आपसे, माफ़ करे, उन्हें माफ़ कर दिया, माफ़ हो गया। बिल्कुल। इससे जुड़ा एक और सवाल है, हमारा कर्ज किसी की तरफ है, हमने उसको माफ़ कर दिया, अब उसके पास उसरत हो गई, उसने हमें दे दिया, हमारी कंडीशन फिलहाल ऐसी है कि वो पैसा अगर मिल जाए तो काम हो जाए, तो क्या वो जो माफ़ किया वो पैसा है वो लेके काम कर लेना चाहिए या वो किसी और ही को देना पड़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल है इनका ये कि हमारा पैसा किसी के पास हो और हमारी हालत अब ख़राब हो गई हो, हमने उसे माफ़ भी कर दिया था, उसके बाद उसकी हालत अच्छी हो और वो पैसा वापस करना चाहे, तो क्या हम लीगल से फिर इस्तेमाल में ले लें? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उनसे पूरी बात आप बता दें, भाई मैंने आपको माफ़ कर दिया था, अब आपकी मर्जी है, आप दो, उसके ऊपर आप पूरी फ्री बिल पे छोड़ दें। अगर उसके बाद भी देता है तो बिल्कुल वो आपके लिए गिफ्ट है। क्या सऊदीया में रहने वाला इंडिया में कुर्बानी कर सकता है? इनका सवाल ये है कि सऊदीया में रहने वाला इंडिया में कुर्बानी कर सकता है? बिल्कुल कर तो सकता है, लेकिन हक ये है कि आप जहाँ कमा रहे हैं ना वहीं आपको कुर्बानी करनी चाहिए, वहीं के गरीब गुरबा जो हैं उनमें आपको बोझ बांटना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके अपने ऐसी हैसियत है कि आप एक ही कुर्बानी कर सकते हो, तो फिर आपके बीवी बच्चे अगर इंडिया में हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर उन्हें कुर्बानी का ऑर्डर दे दो और वो कुर्बानी करें, गोश्त यहाँ के लोगों में भी बांटे, रिश्तेदारों में भी। जब कुर्बानी सुन्नत है या वाजिब है, और इसके लिए क्या कौन सा निसाब की जरूरत है? इसके लिए कुर्बानी करने के लिए निसाब की जरूरत होना जरूरी है। इनका सवाल ये है, कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है और इसके लिए निसाब की ज़रूरत है? भाई अगर आपके पास कुर्बानी की हैसियत के पैसे हैं तो आपको कुर्बानी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं है। कुर्बानी सुन्नत है, वाजिबात में से नहीं है। ये मैं बहुत आपको रसूख की बात बता रहा हूँ कि हज़रत उमर, हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई बार कुर्बानी छोड़ दी, करी नहीं उस साल, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए। और ये भी आज आपको वजाहत कर दूँ कि घर का सरबराह अगर एक जानवर कर दे पूरे घर की तरफ से तो उसकी कुर्बानी हो गई। ये जो हमारे यहाँ चलन चल गया ना कि हर आदमी अपनी अलग एक बच्चे की अलग कुर्बानी करते हैं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बात करना चाहे बहुत अच्छी बात है, शौक और शौक, लेकिन इसे कर नहीं बना लेनी कि हर हाल में आपने यही करना है। एक फैमिली है, उनके 3 बच्चे हैं, चाहे सारे बिजनेस कर रहे हैं, उनका वालिद कुर्बानी करके की तरफ से हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फैमिली की तरफ से एक दुम्बा भी ज़िबा किया और 100 उनकी कुर्बानी। अगर आप कर रहे हैं कि जो शौक और शौक में कि मैं अपने लगे को कुर्बान कर रहा, जानवर को कुर्बानी दे रहा अपने माल से, बहुत फर्क जानवर अल्लाह के यहाँ कबूल होगा इंशाअल्लाह, शौक और शौक के साथ करनी चाहिए। लेकिन इसे कर बना लेना और ये सोचना कि अगर हमने ना करी गुनाहगार होंगे, ये गुनाह है। जैसे मेरे पास आने वाले बहुत गरीब लोग भी कि हम तो हिस्सा ले रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुमने लाखों रुपये बैंक के लिए रखे हैं, लोगों के पैसे तुम्हारी तरफ है, और तुम कह रहे हैं हम हिस्सा ले रहे हैं, तुम्हारे ऊपर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, तुम कैसे इनको हिस्सा ले रहे हैं? तो जिन लोगों के पास इतनी हैसियत हो वो कुर्बानी ना करें, तो नबी ने फरमाया जो हैसियत के बाद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह गुनाह है। तो मेरे नज़दीक सारा जो कैलकुलेशन है इस चीज़ का वो ये है कि आप लोगों को कुर्बानी करनी चाहिए, लेकिन एक फैमिली को एक कुर्बानी, चाहे बड़े जानवर की करें या छोटे जानवर की करें। ये जो अलग अलग पत्तियों का निज़ाम चल गया ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बात करना चाहे खुशी से करें, मगर इसे ये ना समझे कि हमने ना करा तो पूरा ये काम तुम करते हैं, काम रहता है, लेकिन दान देना चाहिए नहीं। डांट लेना चाहिए। हम भी लेते हैं दान, देना नहीं इनका सवाल ये, हमने कोई काम किया उसमें नुकसान हो गया तो हम डांट हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? भाई अगर वो आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहा है तो आप मजबूर हो। भाई आपने कमिटमेंट किया, मान लो कि मैंने आपका चश्मा 300 रुपये का बनाया है, अब लेंस वो आए 250 का, वो टूट गया, तो वो कहता मैंने तो आपको चश्मे में 300 में ऑर्डर दिया, आप तो वो लेंस आपको देना ही पड़ेगा उसे।
हालांकि उसे लेना नहीं चाहिए, जो हदीस मैंने पहले बनाई है वो इसीलिए बताई है, लेकिन अगर कोई लेता है तो आखिर में उसको पकड़ दो, आपको देना चाहिए। तरीका तो शरीयत में क्या फर्क है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है भाई, तरीक़त और शरीयत में क्या फ़र्क है? तरीक़त जो है ना और शरीयत, देखो वज़ू, सजदा, क़याम, रुकू, ये सारी चीज़ जो है शरीयत है। और इसमें जो खुशू एक लफ्ज़ सुना होगा आपने, वो तरीक़ा है। इसे इस तरह से समझो आप चीज़ को कि शरीयत जो है वो बॉडी है और तरीक़त जो है उसकी रूह। ईमान जो है उसकी 5 चीज़ें उसमें आती हैं इस्लाम में, और ईमान में 7 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ वही है तरीक़ा, मतलब आपका इखलास, आपका हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए। आप हर अमल से पहले देख लें कि आप उसमें किसकी खुशनूदी हासिल कर रहे हैं। तो वो जो आप अमल कर रहे हैं वो तो है शरीयत, और वो जो आप नियत क्या इख्तियार कर रहे हैं वो है तरीक़ा। देखो एक हदीस पाक में बात मिलती है कि जब आखिरत में हिसाब किताब होगा तो इतनी नेकियों वाले लोग होंगे कि फरिश्ते जो हैं उनकी नेकी देखे उन्हें जन्नत की तरफ ले जाने लगेंगे। तो अल्लाह उन्हें वक्त बुलाएगा कि इन्हें वापस लाओ और इन्हें दोज़ख की तरफ लेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इनके तो आवाज़ भरे पड़े किताबें नेकियों से, अब तू कह रहा दोज़ख की तरफ। एक चीज़ ऐसी है जो तुम नहीं लिख सकते, उसका तुम्हें नहीं पता, उसका मुझे पता है। इनकी नियत, इक्कीस अमल के पीछे इनकी क्या नियत। अब यहाँ बड़े तो नेक बात बन रहे हैं, बड़े हम चैरिटी कर रहे हैं, बहुत हम गरीबों की शादी करा रहे हैं, और नियत हमारी दिखावा, फोटो खिंचवा रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं। तो अल्लाह को उस नियत का पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लोग यहाँ हमें बहुत सही समझ रहे हैं, उसकी नज़र में सही। कोई तो मैं कह रहा हाजी, अगर आप उसके रजिस्टर में लिखे गए तब आप हाजी हो, यहाँ आप कहते हो जाओ। म्यूनसिपलिटी में भी आपका नाम हाजी फुरकान लिखा हुआ, लेकिन अल्लाह के यहाँ अगर फुरकान लिखा हुआ है, हाजी नहीं लिखा हुआ, तो आपका कोई हाजी नहीं। तो ये तरीक़त है कि अल्लाह के रजिस्टर में आपका नाम हाजी हो, और ये शरीयत है कि आपने यहाँ हज कर दिया।